So a very good evening. So let's just lightly revise APV, right? And then go into what business valuation as of today. I hope yesterday whatever we revised, it helped you a bit. Tell me, those who are new or those who have not gone through the lectures, correct? We have Divya, Priya, Ramsiya, Chetna, Pravansh, enough. Did you find it helpful or no? Yes, Not sir. helpful, था? बढ़िया. If you say so, we believe you. Correct. I hope everybody just focus on whatever we are doing. Okay. Fast revision helps you retain concepts. Okay. So come to APV, adjusted present value. We had done it yesterday. Just revising a bit more into detail. Maybe I might have left one or two concepts here and there. First, you have to understand that when can existing WCC be used for a new proposed project. The four are what? New business, old business, right? Both have to be of or the same business. The business risk cannot change. Correct? Right. Second is weight of equity and debt. Right? Have to be same in the old and the or existing and the new business, and the funding of the new business should be done via pool of funds, that is project specific borrowing is not allowed. Correct. Right. Then business is comparatively smaller in size as compared to existing business. If one condition, only this condition is not fulfilled, but other three conditions are fulfilled, you can use risk adjusted WCC. That will help you to get what? Tell me things. But if all the four conditions are not fulfilled, right, in that case APV comes into the question. Base case NPV is always used as your normal NPV question. You do the normal NPV question, solve it as a normal NPV question. The only difference would be that you are dividing the base case NPV or discounting the base case NPV by the KI or the KI, that is KI ungeared. Ungeared means what? You are using what? Your money completely. So what you did basically, equity का calculation पूरा अलग, debt का calculation पूरा अलग. Correct? So equity का calculation, all the works that you do is done by KI, right? So all the normal base case NPV would be normal business cash flows, right? That is same cash flow of NPV as before till net cash flow, ungeared cash flows that will be there, right? You will not consider any interest cost or anything here, and you will discount the cash flows with the ungeared cost of capital, that is KI. That will give you base case NPV. Then there will be what? Tell me. Present value of financing effect. Correct. There will be issue cost, normal loan and subsidized loan. Correct. Issue cost of equity as well as debt. Generally equity and debt के issue cost के लिए we have seen that issue cost. Correct. Here issue cost का table, हाँ, issue cost net investment amount is equal to amount invested. Correct. If nothing given, initial investment plus working capital both have to be included. Remember, in issue cost, if it is not said anything, then your initial investment and working capital investment both will be included. But if specifically given that only the amount that is required to be initial investment that is to be taken, then only take that. Correct. Then if it is internally generated, right, company selling the asset and raising funds, there will be no issue cost generally. Correct. And if it is external, right issue, equity issue, loan and subsidized loan, right, then generally issue cost will arise. And then calculation of cost. Correct. The gross basis. Correct. If it is gross basis, you have to do net investment divided by 1 minus issue cost percentage into the issue cost percentage, right? So the gross concept will apply. But if net basis, if the line used in exam is issue cost paid from cash reserves and gross basis is there, then your gross and net both become same. On the net investment you will calculate issue cost. So whenever they say issue cost to be calculated at gross amount of 2%, the amount required is net investment, right? So your gross will be net divided by, net is 98%, if 2% is the issue cost, 98%. So net investment divided by 98% into 2% will give you the issue cost. But if directly net basis पे कामकाज होने वाला है, then in that case, and if the line is, if the cost issue cost paid from cash reserves plus gross basis, Robson company में ये चीज है, then net investment into issue cost directly. दो तीन question I think the same thing is used. Then when I say financing impact, right, तो ये हो गया issue cost. Correct. Then you have what? Debt and equity का issue cost. Have a look. Equity का actual cost will be cash flow, generally in 0 year only. Correct. And it will be a relevant cash flow. Tax shield on issue cost of equity generally never there. Equity के issue cost पे never will you get
What? Tell me. Never will you get. Tell me. Tax shield. Debt case पे default is not available, but if they tell specifically that tax shield is available, then you can take. Correct. But generally it is not there. Then calculation ठीक है. I think we have done a different note. ठीक है, वो भी ओके है. उसके बाद फाइनेंसिंग इम्पैक्ट. नॉर्मल लोन में क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑलवेज इररिलेवेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्काउंट द कैश फ्लोज ऑफ फाइनेंसिंग इम्पैक्ट. तो अभी बेस केस एनपीवी डन, फाइनेंसिंग इम्पैक्ट अलग, इशू कॉस्ट का कैलकुलेशन डन, डेट का डन, इक्विटी का डन. करेक्ट. डेट का इक्विटी का बोथ डन. करेक्ट. राइट, दैट इज देयर. देन इशू कॉस्ट पर टैक्स शील्ड है या नहीं है? जनरली तो नॉट अलाउड, बट इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन दैट टेक टैक्स शील्ड, तो टैक्स शील्ड ले लेना. देन सब्सिडाइज लोन है. दो तरह के लोन हो सकते हैं, नॉर्मल लोन एंड सब्सिडाइज लोन. इन द नॉर्मल लोन इंटरेस्ट कॉस्ट इररिलेवेंट, टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेवेंट. सब्सिडाइज लोन में इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लोन इररिलेवेंट, टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट कॉस्ट is relevant, right? Interest cost saved is relevant. On the subsidized loan, tax shield on interest cost that you pay, subsidized loan would be lower rate loan that is there, right? That is the interest cost is relevant, but tax shield on that is relevant. Interest cost saved on the subsidized loan as compared to the normal loan, relevant. Extra tax payable on the interest cost saved is what? Tell me. Relevant. You have to pay extra tax on the savings, correct? Then equated yearly installments, right? Repayment of loan I think happens by 3 or 4 methods, correct? उसमें से एक इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट इधर होगा ना रे. हाँ, लोन रिपेमेंट मेथड, अनइवन रिपेमेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ. दे विल से सेकंड थर्ड ईयर में रिपेमेंट हैपेंस और लोन रिपेड वाया इक्वल इंस्टॉलमेंट. सो नो डिटेल्स ऑफ रिपेमेंट गिवन, डोंट वरी अबाउट रिपेमेंट एट ऑल. बट वेयर इट इज इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट, you have to do what? The principal amount, correct, divided by the annuity factor, right, of the interest rate percentage and the number of years loan is there, correct. Then last, if base case NPV is positive and present value of financing effect is also positive, in that case don't take tension, accept the proposal, correct. But base case NPV is negative and this is all this positive and APV comes to negative, reject. APV comes to positive, correct, accept the project. Have a look. Makes sense? Have a look. Right, need to be checked. Here positive hai, but you have to write what the base case NPV is negative, though the business idea is not that great. Hence we should what? Think about it again, right? That is what you should write in comment. Barabar. APV, this is what APV holds. Remember, पूरा बेस केस एनपीवी अलग, फाइनेंसिंग इम्पैक्ट के सारे कैश फ्लोज अलग. देन दिस फाइनेंसिंग इम्पैक्ट will be what? Discounted by the KD rate. KD could be RF plus, you remember RF plus risk basis point could be used as KD, right? And then coming to option valuation, basic of options and type of options, correct? The share option valuation, what? The basic derivatives, what is the basic derivative and all those things we have written quite in detail. What are basic derivatives, how basic derivatives work. I only understand one thing here. What is the one thing? Real option example. If it is a delayed project, correct, how do you find the delayed project mein? Tell me, how do you find the NPV? So BSOP calculator helps you understand NPV. See, I now understand that in BSOP, no, first when we were there, correct, when I was there, right, we had to calculate what? We had to take all the 5 factors. What are the 5 factors, right? Bolo. 5 factors. PA, P, बराबर. Third, standard deviation. Fourth, tax. और fifth क्या है? RF rate. If you put in these 5 things, you get the value of call option or value of put option. The only talent that lies here, logically, would be understanding. Don't be surprised this time around, correct, that if you get a full 25 marker question on options, किस पे? Options पे. Do you remember we have done one question, Riviere company? याद करो, Riviere company. I don't know how many of you have done it, but I have done that. Riviere था या कौन सा था रे? I have done 2 questions. Rather, I have done almost every type of question in the book. आ जाओ जरा, Riviere याद है ना रे? मूनस्टार, लिमनी, जो बहुत पहले होगा.
तुम्हारा किधर है रे? किया था ना रे क्वेश्चन? मूनस्टार ने, ट्रिपल टाइन भी नहीं। किधर किया रहता है ऑप्शन का क्वेश्चन? टेल मी विच क्वेश्चन हैड वी डन? आई थिंक परलियन था। फर्लियन, फर्लियन, फर्लियन और रिवियर है, दोनों था ना? बट फर्लियन इधर दिख नहीं रहा है। रियल ऑप्शन ये रहा, फर्लियन कंपनी। करेक्ट। फर्लियन था, और एक क्वेश्चन था रिवियर है, वैसा टाइप का क्वेश्चन क्लास में हमने किया था। इफ यू रिमेंबर, सी 3 और 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स अप इन ऑप्शन। एक तो डिलेड ऑप्शन, करेक्ट, डू द प्रोजेक्ट नाउ और डू इट लेटर ऑन, करेक्ट। द ओनली कैच, डू द प्रोजेक्ट नाउ, कैलकुलेट द एनपीवी, that is okay. But if you tell me delay the project, first tell me is it a call option or a put option? एक सेकंड, आराम से, गड़बड़ मत करो। Call option or put option, what type of option are we talking about when I do what? Tell me. Delay the option, tell me, call or put, शांति से, which option am I talking about? बोलो। Delayed option, delay of a project, I am talking about which option? कॉल Call option, बराबर है। So in that case what I have to do, right? Normal, तो if you do the project now, great, you run the project now, बढ़िया, great, no tension, no problem, no issue at all, you find the NPV as of today. But if you can delay the project, two things you have to look at, correct? One is whether any investment is done today, like we had done in this question of what? Tell me. Furlion company, अगर आप Furlion company में जाए, correct, तो there was some existing what? Tell me. एक मिनट ऊपर है। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट 110, राइट। फॉलो ऑन प्रोजेक्ट, नहीं नहीं नहीं, एक कौन सा किया था रे? रियल ऑप्शन, एमएमसी, एमएमसी, सॉरी, एमएमसी क्वेश्चन, एमएमसी कंपनी, you should come to MMC company question, where if you launch the and develop the game now, correct, you have the net cash flow something like this, the 12 ka investment, there was a line in MMC company, if you remember, that 12 ka investment should be done now, correct, you do the project today or you do it after 3 years, 12 का इन्वेस्टमेंट तो होगा 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 ही, correct, that 12 का इन्वेस्टमेंट will happen, but 35 का इन्वेस्टमेंट will happen later on when you run the project. So if let's say you run the project after 3 years, right, your PE will be the initial investment that is there at the end of second year, वो तो रहेगा ही, correct, plus what will be there? Tell me. You will have what? Tell me. The cash flows. Cash flows का PA when you put, correct? Do you put present value as of second year or do you put present value as of 0 year? ये PA जो डालते हो आप, PA, ये इधर, it is present value of what? As on 0 year or as on this second year? बोलो, याद जीरो है। करो। 0 year, correct or not? PA. That is how PA works out. Then you put all this with the SD and time and everything into the क्या है, BSOP calculator. You get the value of call 13.64. Then आज का जो 0 year में 12 है ना, वो माइनस किया इधर। MMC company, honestly, if you have not seen, please look at the question. MMC company, very good question, correct. Then there is a question called Furlion company. Furlion company, Furlion company तो और भी बढ़िया था। Option of starting a follow up project, right, and then option of selling ना comparatively बहुत easy है, but option of delaying the project and option of starting a follow up project, right, your Furlion company was option of starting a follow up project, right. Those who don't know what is Furlion company, मैं बताता हूँ। Furlion company में ना, they have said that one project they will run now, right, and the NPV of that project as of now is 0. NPV of project that now as of now is 0. Or if they run the same project, correct, I think Furlion company में extra और एक project, if you run the project now NPV 0 है, but फिर भी if your second year में और third year में you could run a new project when a new government comes up, right, and its NPV as of 2 years or 3 years from now is given, correct, and then that initial investment is given and NPV is given, you have to find present value of all future cash flows, correct,
and then that is as of second year. You have to bring it back to 0 year and put it in the option valuation table, correct, and do the question, right? That is how it is. तो मैं कितना भी चाहूं that I want to what tell you all this, till you don't read the whole question आराम से, till the time you will not understand option. So either it is what logically project to be done today, or project delayed after 3 years, or one project run now and follow on project after 3 years or 2 years, correct? So you have to do normal project will have negative NPV or zero NPV, and the follow on project, if it has positive NPV, then if both the projects are run together, you will have what net NPV as positive, correct? ऐसा है बॉस, करेक्ट. इफ यू वांट टू हैव अ लुक, ये एक्सपांशन ऑप्शन है ना, बढ़िया ऑप्शन है. हियर यू सी व्हाट इट इज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपांशन है. इसमें मैंने फर्लियन जैसे 2 क्वेश्चन किए, राइट? यू कैन हैव अ लुक, करेक्ट. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फर्लियन, यू शुड डू एंड गो. मे बी आपको समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो मैंने किया है उससे शायद आपको समझ में आ जाए. देखो, इनिशियल प्रोजेक्ट ऑफ एनपीवी एज ऑफ टुडे इज गिवन $1.1 million नेगेटिव. देन आई डिड व्हाट, फॉलो ऑन प्रोजेक्ट आफ्टर 3 years जिसका एनपीवी 0 है, करेक्ट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 15 and present value of FCF is also 15, but this is at the end of 3rd year, correct. वो 3rd year को खींच के पीछे लाया, right. Present value of FCF at year 0, this is PA, this is PE, correct. We put up PA, PE, and then SD and everything we put up, and we got positive 1.36, either negative or इसका positive 1.36 gives me what, tell me, an NPV of positive 0.26. might be a very small NPV, correct, but NPV तो है बॉस, करेक्ट. देख लो, हैव अ लुक. ऐसा काम काज आप कर सकते हो. एंड ऑल्सो इफ यू आर एट नेगेटिव 1.1 एंड इफ यू आर गोइंग टू सम पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट, वो दोनों मिला के पॉजिटिव वैल्यू पे गए तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पूरी वैल्यू का ट्रेवल हुआ, राइट. सो फाइनेंशियल इंपैक्ट, राइट, विल बी अ लॉट मोर हायर. ऐसा है बॉस, करेक्ट. ये देख लो, आप एक बार चेक कर सकते हो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. क्या है, फर्लियन है ना, फर्लियन मस्त क्वेश्चन है, आप ट्राई करो. फिर तो क्या है, पुट ऑप्शन. हाँ बोलो. 25 मार्कर में उनकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आ सकता है. द होल क्वेश्चन देखो, फर्लियन वी हैव सॉल्व्ड. ऑनेस्टली टेल मी, कुछ है क्या ज्यादा दम फर्लियन में? ओनली द रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको रीडिंग इंटरप्रिटेशन आ गया, करेक्ट, बट रीडिंग में इंटरप्रेटर हुआ ही नहीं कि पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, क्या वो आफ्टर 3 year वाला एनपीवी दे रहे, आज का एनपीवी दे रहे, तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे. आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट डन फर्लियन कंपनी. मतलब मेरे स्टूडेंट ने किया क्योंकि मैंने क्लास में कराया. बाकियों का फर्लियन कंपनी क्वेश्चन मालूम है क्या आपको? रेज योर हैंड इफ यू नो द क्वेश्चन फर्लियन कंपनी. व्हाट डू यू से एवरीबॉडी न्यू टू द क्लास? फर्लियन कंपनी देखा है? देखा ही नहीं सर. ऑप्शन वैल्यूएशन कौन करके जाता है, करेक्ट. बट इजी मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन वैल्यूएशन आना जरूरी है, करेक्ट. सो देन द अदर पार्ट इज अ पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन वुड बी व्हाट, एट द एंड ऑफ, so 5 year project, at end of 2nd or 3rd year someone is ready to buy your project at some value that you know today, and because of that you lose cash flow after sale of project. तो after sale of project वाले cash flows का present value निकालना, and PE will be basically your what, tell me, the sale value that is given to you. So you put PAPE, the time that is there, time will be nothing but when the project is sold, correct. In the end of the year the project is sold, then standard deviation and R, and get your. But here you have to use value of put option, correct or not? Put option use करके कामकाज करना पड़ेगा, and that will be your NPV if you close the project earlier. काम खत्म. यू कैन व्यू एट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव डन इन क्लास. बहुत क्वेश्चन है किए हुए, ठीक है. चलो, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ मर्जर प्लस बिजनेस वैल्यूएशन, करेक्ट. ये तो एक क्या है, माया जाल है ये क्वेश्चन. बट मेरे को सच में बोलो, आर स्टूडेंट्स ये बोलो रे अब बहुत प्रॉब्लम है क्या? मेरे को बोलो वैल्यूएशन में. सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? कुछ है क्या? रेहान, हिमांशु, विपाशा, संजना, है कुछ ऐसा? नहीं ना. अभी तो आधे लोग आई थिंक आज आए भी नहीं है, करेक्ट. मोर देन हाफ आई थिंक रिविजन सब लोग यूट्यूब से देखने वाले, राइट. दैट इज हाउ इट विल बी, करेक्ट.
तो परचेस कंसिडरेशन प्लस गेन टू शेयर होल्डर, ये मैंने बनाया था ना एक्सेल में एक क्या बोलते हैं, हाँ बनाया बनाया एक्सेल पे इसका एक बनाया था ना रे, परचेस कंसिडरेशन की सर वर्किंग फॉर्मेट नोट है। का फॉर्मेट है ना बेटा। हाँ, जीके पे कोडियाक परसूट के पहले ही होगा। हाँ, फॉर दोज हु आर न्यू, ठीक है, ऐसा कुछ कामकाज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ अक्वायरर और टारगेट कंपनी, ऐसा होता है क्वेश्चन, करेक्ट। और इसमें भी क्या है, बहुत सारे परचेस कंसिडरेशन। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी क्लियर विथ परचेस कंसिडरेशन, है क्या, परचेस कंसिडरेशन क्लियर है तुम्हारा, प्रवांश क्या लगता है, बोलो, क्लियर है एकदम चकाचक। सर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, जैसे शेयर फॉर शेयर, उसमें बाकी तो हाँ, ठीक शेयर है। फॉर शेयर एक्सचेंज, जिसमें क्या है, वैल्यू आफ्टर मर्जर नहीं दी गई है, वैल्यू बिफोर मर्जर या वैल्यू आफ्टर मर्जर का लफड़ा है, बराबर है ना, वही वाला हाँ लफड़ा रहता सर। है ना, क्या हाँ बोलता है सर। हिमांशु, संजना, अब वो क्लियर है क्या, हमने 2 बार किया परचेस कंसिडरेशन क्लास में, है क्या नहीं, बोलो, 2 बार किया था ना रे, मेरे को 2 बार कराना पड़ा, ये लोग पहली बार में समझे नहीं, बराबर है? क्लियर है। हाँ, बोलो, क्लियर है, अभी क्लियर है क्या, कृष्णा व्हाट डू यू से, कृष्णा प्रिया, क्लियर है क्या तुमको, परचेस कंसिडरेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है या प्रॉब्लम है, I wouldn't say crystal clear, but हाँ अंडरस्टैंडिंग तो है। अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया है, चलो है तो बढ़िया है, नहीं है वही लफड़ा है, ठीक है, चलो, कंपनी हैज वैल्यू ऑफ हाउ मच, देखो, नंबर ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू, देखो, वेर एवर देर इज ओनली, क्या है, कैश कंसिडरेशन है खाली, तो टेंशन ही नहीं है, करेक्ट, cash consideration is very clear that new value will be the cash paid for what, the old company, so whatever extra cash you pay is synergistic gain attributable to company B, correct. There is a concept of company A old value, company, that means acquirer company, target company, old value लेने का, new value लेने का, correct, both have to be equity shares, right, but if your consideration is a mix, then what, cash and equity share both, बराबर है, तो अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव टू पे टू कंपनी बी, राइट, दैट इज द, अभी कंपनी इज ऑलवेज अक्वायर एंड कंपनी बी टारगेट, तो टारगेट कंपनी को इफ यू आर पेइंग कैश प्लस शेयर्स बोथ, देन इन द न्यू वैल्यू यू विल गेट बोथ द थिंग्स, करेक्ट, बिकॉज यू हैव टू फाइंड गेन टू शेयर होल्डर इन बोथ द सिनेरियोस, बराबर है क्या, देख लो जरा, कंपनी हैज अ वैल्यू ऑफ 700 मिलियन, करेक्ट, $35, 35 million shares of $20 each, right, that is how things will work out, so you will pay cash consideration, so cash consideration is the new value because you are going to pay 20% extra, cash consideration का मेरे को टेंशन है भी नहीं, राइट, कैश कंसिडरेशन में प्रॉब्लम आता भी नहीं, राइट, आ जाओ जरा, कैश परचेस कंसिडरेशन इन कैश, ये भी ठीक है, हाँ, शेयर्स ओनली में थोड़ा टेंशन रहता है, शेयर्स ओनली में टेंशन रहता है, व्हाट इज द टेंशन दैट यू विल हैव इन शेयर्स ओनली, उसमें कभी नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया रहता है, उसमें कभी क्या, व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ शेयर टाइप 1, क्या है टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, इसमें ही दुनिया बसी हुई है, करेक्ट, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, टाइप 1 इज नंबर ऑफ शेयर्स गिवन टू यू, करेक्ट, आफ्टर मर्जर, तो शांति से, कंपनी बी विल क्लोज डाउन एंड कंपनी बी के शेयर होल्डर विल गेट कंपनी ए के शेयर्स, दैट इज देयर, तो कंपनी हैज वैल्यू ऑफ 700 मिलियन, 35 मिलियन शेयर्स ऑफ $20 each, company B has an existing value of $20 million, 20 million shares at $10 each, and company A gives its own shares to its existing shareholder of company B, 1 share for every 2 shares held in company B, so 1 share for every 2 shares, so if you have 20, so if you write it like this, you get to understand that how do you calculate this 10, this old number of shares 20, for every 2 shares held you will get 1 share, so you will get 10 million new shares, old shares and new shares of company A shareholders are going to remain same only, correct, it will not ever change, correct,
and it is given that expected share price of the combined company after merger. So you will have what? 35 plus 10, 45 million shares now, and the value will be 24. So your value comes out to be 1080. Correct. Now 24 is the value that is applied to the combined है, तो B के वैल्यू शेयर्स को भी वही वैल्यू, A के शेयर्स को भी वही वैल्यू, तो it goes to what? 240 million given to what? New value of company, and 840 year. So then you find out old value was 700, new value was 840. करेक्ट है क्या? देख लो. टाइप 2 क्वेश्चन आ जाओ. Type 2 question, number of shares plus market value after merger not given, but synergy given, right? In this case, what will happen? ये सब दिया हुआ है, right? They have given synergy also. Company A, number of shares you can calculate. ये देखो number of shares. Synergy दे दिए, 250 million is synergy. So if 250 million is the synergy, then total new value of the company is 900 old value plus the synergy, right? And the shares, you know the total number of shares. You know the total value of the company, you have to find new value per share and then apply it to both these companies and try to find out how much of the 250 million is attributable to company B, company A, right? Then type 3 question, number of share, market value after merger not given, given, synergy breakup given. बराबर है क्या? देख लो. Company has value of 700 million, ठीक है, वो हो गया. Synergy expected from the merger is 250 and 40% of the same is attributable to company B. तो synergy 250 लिख देने का. इधर 100 synergy है, क्या है? To company B and 150 to company A. फिर 200 इसको synergy, इसको 100 की synergy है, तो न्यू वैल्यू इतना होगा. And no need to calculate number of shares. पूछा ही नहीं है. Lot of questions have this. ये देखा है क्या संजना ऐसा कुछ? एक दो क्वेश्चन में है ना ऐसा कुछ? बोलो कि डायरेक्ट ब्रेकअप ऑफ सिनर्जीज गिवन. क्या लगता है हिमांशु? दिया है क्या बेटा? दिया है ना? एक दो क्वेश्चन में है वैसा, डायरेक्ट ब्रेकअप ऑफ सिनर्जी. मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्जर नॉट गिवन, सिनर्जी गिवन. ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, सिनर्जी दे दिया, कोई टेंशन नहीं है. तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड अकॉर्डिंगली फाइंड व्हाट. टेल मी. देखो क्या बोला है, सिनर्जी एक्सपेक्टेड 250. करेक्ट. कंपनी भी एक्सपेक्ट अ प्रीमियम फ्रॉम द मर्जर ऑफ 25% मिनिमम, यानी 25% ये आ जाए बोल के इसको क्या है, सिनर्जी दे दिया. इसको 50 का सिनर्जी है, राइट, और इधर फिर 250 का वैल्यू हो जाएगा. फिर 200 का सिनर्जी इधर चला जाएगा, राइट, और 900 की वैल्यू हो जाएगी. हैव अ लुक. बराबर है. अब एक क्वेश्चन आता है टू फाइंड व्हाट. टेल मी. एक क्वेश्चन आता है टू फाइंड शेयर एक्सचेंज रेशियो. हैव यू हर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन? टू कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो. याद है क्या? किया होगा कहीं ना कहीं. रेहान, व्हाट डू यू से? शेयर एक्सचेंज रेशियो. नाउ इजी टू कैलकुलेट. टेल मी. Yes or no? Right. Very easy, straightforward question. Correct. What is the easy and straightforward question? See, company A के old share के detail, company B के existing share के detail given, synergy given. Correct. Company B expect a premium of how much, something XYZ 25% given, right? And you have to calculate what the old shareholders के working से you have to calculate what the value per share. And then decide if value per share is calculated 151, right, and then decide how much will be, tell me, the new number of shares, and usse you will get how much are you going to get new value per company. Then you have to calculate this. ये ना, ये इधर calculate होगा old इसमें, and फिर it will be calculated here. So if I do it once, no, how you should do it? Correct. I generally give this working note ऐसा. देखो, company has value of $1,200 million, 10 million shares of 120. So number of shares 10, 12 or 120 is your what? Tell me. Market value. This into this. Then come to company B. You have 10 million shares of $35 each. So this into this. Correct. Combined is this plus this. Synergy expected is 400 million. So gain or synergy is 400. So total value of company comes to 1550 plus this 400. Company B expects shareholder a premium, or a shareholder expect a premium of 25% minimum from company A. Purchase consideration will be shares only. Correct. So you want the new value of company to be 350 into 1.25 because you want minimum
25% what? Premium, correct? So if I say, then how much is the what? Tell me, premium that is attributable or gain that is attributable out of the 400. Gain that is attributable to company B is 87.5. So how much is the gain or synergy attributable to company B? 312. So what will be the new value of company B? This plus this, right? Now new number of shares of company A will be the same. And what is the new value? This divided by this. This will be, now if I say that this is the combined company ka per share value is 151.25, correct? Then how many number of total shares will be there? 12.89. 10 already are with company, so extra 2.89, correct? So new value per share is 1.151. Now, so if I have to give 10 million shares, and I will get 2.89 million shares. So around one share for every what? Or for every 4 shares, I will get 1 shares. Somewhere, something like that. Or for every 100 shares, I will get 29 shares that are there. 4 point something share. That also you can calculate. For 1 share, you will get 0.289 something. Or for every 100 shares in company B, you will get 28 or 29 shares in company A. This is how you have to find what? Yeah, most of the people have problem here. Most, right? Then shares plus cash. Usme you will have what? Share plus cash both given to you in the after merger. Not only equity, are you going to add cash consideration also? So you can have a look at that, right? Gain synergy given, cash given, you can calculate it. Shares plus cash पे इतना मेरे को टेंशन नहीं लगता है, correct? So this is the purchase consideration format. I am telling you right now only, if you are thorough with purchase consideration का working note ना, you can, there are chances, very low chances that you will go wrong somewhere, correct? Then coming to what? Valuation methods. You can check these notes. I have given a lot of notes for this, correct? Lot of notes. मतलब इतना सारा है कि you will be very happy that you have these notes. You can read these notes and try to solve all the questions. बिजनेस वैल्यूएशन में 2 मेजर मेथड्स है, कैश फ्लो बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन FCFF मेथड्स है, करेक्ट, और FCFE मेथड्स है. नाउ ऑनेस्टली दीज मेथड्स पर से आर नॉट डिफिकल्ट, बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैश फ्लोज, the biggest problem that a lot of students have is interpreting cash flows. Cash flows interpretation में लफड़ा होने ही वाला है. To whether take that sales, not take that sales, ठीक है. FCFF, FC. एक क्वेश्चन है which I had taken in class. Very good question. If you want to what? Completely revise the whole part. Everything that is there. If you want to revise that, you should do Pursuit company. Pursuit नहीं, रुको. Pursuit था क्या? नहीं. एक कौन सा क्वेश्चन था रे, बहुत ही, कैरिन कंपनी, डेंटन और कैरिन, हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कैरिन कंपनी, इफ यू डू नो, कैरिन कंपनी मस्त क्वेश्चन है. क्या? कैरिन कंपनी कर लिया ना, लाइफ में कुछ और आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, बिकॉज ऑल मेथड्स आर कवर्ड हियर. देखो, दिस इज माय वे, यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर. दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट. मेथड 1 क्या है? देखो पहले तो FCFF का क्या देखो, फॉर्मेट देखो. FCFF format is very simple. Sales minus variable cost gives you contribution minus fixed cost gives you what? Fixed cost and depreciation gives you PBIT. इसमें से tax minus करने का, because FCFF means free cash flow to the firm, that means debt plus equity shareholder both. तो tax minus करने का profit after tax आ जाएगा, depreciation add करने का operating cash flow for firm आ जाएगा, purchase of NCA करना, maintenance of NCA करना, correct? Sale of asset if any, inflow, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इफ एनी इक्विटी शेयर इशू ऐसा कुछ हुआ तो वो, एंड फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इक्विटी प्लस डेट, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर है WCC प्लस परपेचुटी फैक्टर. अभी हमने परपेचुटी फैक्टर भी अलग से किया हुआ है, राइट? एंड देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इज FCFF, यू गेट द वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, एंड देन डिडक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड गेट योर वैल्यू ऑफ इक्विटी. टेंशन ही नहीं, करेक्ट?
जनरली 2-3 ईयर्स का फॉर्मेट दिया होता है, फोर्थ ईयर बोलते हैं कि द कैश फ्लो और एफसीएफएफ ऑफ थर्ड ईयर विल ग्रो बाय सर्टेन परसेंटेज और विल रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। अकॉर्डिंगली आपको या परपेचुटी लगाना है, परपेचुटी विद ग्रोथ लगाना इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट। करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपको क्या है, एफसीएफएफ का ये फॉर्मेट है, एफसीएफई में एक ही क्या है डिफरेंस है, वो क्या है कि भाई इंटरेस्ट डिडक्ट होगा पीबीआईटी के बाद। करेक्ट। और इधर न्यू डेट रेज्ड और रिपेमेंट ऑफ एनी डेट होगा तो प्लस और माइनस होगा, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा इन द डिस्काउंटिंग कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर दैट विल बी यूज्ड। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था यार डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लगना चाहिए, के ई लगना चाहिए या के आई लगना चाहिए? बताओ मेरे बच्चों, के ई लगना चाहिए या के आई लगना चाहिए? सोच के बताओ। आई थिंक आई हैव गिवन अ नोट फॉर दिस। क्या लगना चाहिए, के आई या के ई? गियर्ड के ई लगना चाहिए या अनगियर्ड के ई लगना चाहिए? सोच के बताओ। एफ सी एफ ई, आर यू कंसिडरिंग ऑल इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग यार? तो इधर के ई गियर्ड लगना चाहिए। हिमांशु, लिखा है क्या अपन ने? बोलो, नोट लिखिए क्या इसके बारे में? नहीं लिखोगे तो लिख दो, मेरे हिसाब से तो लिखिए मैंने। करेक्ट। तो एफसीएफएफ में जनरली क्या होता है, 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। राइट। 2-3 साल के लिए एफसीएफएफ ड्रॉ करना है, फोर्थ ईयर से परपेचुटी। करेक्ट। या तो क्या है, एफसीएफएफ गिवन फॉर सेम ईयर, राइट, एंड परपेचुटी विद ग्रोथ होता है। थर्ड होता है 1 साल का 0 ईयर का एफसीएफएफ गिवन, और वो ग्रो होगा फर्स्ट ईयर से और फिर सेम अमाउंट होगी, या तो ग्रो होगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल परपेचुटी विद द सेम अमाउंट। हमने आई थिंक एंड में जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वर बेस्ड ऑन दिस मेथड। करेक्ट। देन एफसीएफएफ वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिव्स यू वैल्यू ऑफ इक्विटी। एफसीएफई में डायरेक्ट के ई डिस्काउंट करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। सर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, व्हाट मेथड टू यूज? डिफॉल्ट मेथड कौन सा है बताओ मेरे को? एफसीएफएफ है या एफसीएफई है? बोलो 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 बोलो। इधर एफसीएफ 0 नेवर एवर इंपॉर्टेंट, एफसीएफएफ है। कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, बेसिक असम्पशन है एफसीएफएफ से ही होगा। एफसीएफई के लिए स्पेशली एग्जामिनर को देना पड़ेगा आपको दैट प्लीज यूज एफसीएफई। राइट। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कंपनी बाय कैश फ्लो मेथड देख लो जरा। अगर एफसीएफएफ फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिवन है तो ये, नहीं तो इफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज नॉट गिवन तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। ऐसा भी आप वो मेथड से भी जा सकते हैं। ग्रोथ रेट फॉर्मूला ठीक है, परसू डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस आ जाओ। इसमें एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, मैंने तो एक्चुअली केरिन कंपनी आपने सॉल्व करना चाहिए, बट इधर मैं गार्नोड या कोई एक वेस्ट पार्ले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो रिवाइज हो जाएगा। If depreciation and maintenance of NCA given as different amount, no tension. कभी कभी होता है ऐसा, depreciation and maintenance of asset of NCA given as same, उस केस में आप depreciation ऐड करो या डिडक्ट करो, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। याद है क्या लास्ट क्वेश्चन इसका क्या था, कौन सा किया था रे? उसमें था ये एकदम लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था रे अपन ने क्लास में? रुको बताता हूँ मैं आपको। आफ्टर डूइंग हेजिंग एंड में क्वेश्चन किए थे मैंने, क्राइसोस किया था, याद है ना? क्राइसोस में व्हेन यू आर डूइंग एफसीएफएफ, डू दे डिडक्ट डेप्रिसिएशन, डू दे ऐड बैक डेप्रिसिएशन एंड डिडक्ट एनसीए? याद है? याद करो, ऐड बैक करते अपन डेप्रिसिएशन और एनसीए। ये क्राइसोस या बेंटो में कहीं तो किया था एंड में, क्राइसोस में ही किया था ना रे? हिमांशु तू था ना लास्ट डे, एमबीओ वगैरह कर रहे थे अपन ये वाले क्वेश्चन का, याद करो। इधर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन एंड एनसीए इन्वेस्टमेंट आर द सेम अमाउंट। वी डिड रॉन्ग एंड देन मैंने बताया आपको कि ऐसा हो सकता है। देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड क्राइसोस कंपनी, आप वहां तक पहुंचे क्या नहीं मालूम नहीं, क्राइसोस तक, बट वेरी गुड क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसा होता है? देखो जरा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? एक ओपनिंग बैलेंस होता है विच इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर, देन करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज डन, एंड देन आगे काम काज होता है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक क्वेश्चन है जहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पूछा गया था। करेक्ट। देन डब्ल्यूएससीसी और केई फॉर इंडिविजुअल कंपनी, ये तो आप ओके, वो जो बीटा इक्विटी, बीटा एसेट, गेयरिंग, डी गेयरिंग, री गेयरिंग, करेक्ट, वो वाले फॉर्मूला से, और
या तो बीटा एसेट कंबाइंड कंपनी का दिया है, बीटा इक्विटी, बीटा एसेट से बीटा इक्विटी जाना, बीटा इक्विटी से बीटा एसेट जाना, बीटा एसेट कंबाइंड कंपनी. जनरली इफ नथिंग इज गिवन देन यू कैन यूज व्हाट, कोई वेट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यूज ऑफ बोथ कंपनीज है ना, उस वेट पे बीटा एसेट ऑफ बोथ द कंपनीज लेके यू कुड डू व्हाट, रीगेयरिंग एंड गेट द बीटा इक्विटी ऑफ द कंबाइंड कंपनी. विद दैट यू कैन कैलकुलेट केई. अगर नहीं दिया है तो जनरली डब्ल्यूएससीसी दे देते हैं. अगर डब्ल्यूएससीसी नहीं दिया, बिकॉज एफसीएफएफ विल बी डिस्काउंटेड एट डब्ल्यूएससीसी, एफसीएफई विल बी डिस्काउंटेड एट केई. करेक्ट. तो डब्ल्यूएससीसी अगर न्यू कंपनी का दिया है तो ग्रेट, नहीं दिया है तो बीटा एसेट ऑफ बोथ द कंपनीज गिवन. कौन? टेल मी. योर acquirer and target company, वो लेने का. राइट. इफ वेट दैट विल बी यूज्ड इन एज बिजनेस रिस्क इन दैट कंपनी, वो वेट ले लेने का इफ गिवन. इफ नॉट गिवन देन ओल्ड वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज के हिसाब से वेट लेने का. आई थिंक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है डब्ल्यूएससीसी का भी, आई थिंक कैरिन में ही है. अगर आप कैरिन कंपनी पूरा करेंगे ना तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा कैरिन कंपनी में. ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया. पी रेशो से भी वैल्यूएशन दिया है, एफसीएफएफ से भी है. करेक्ट. ये देखो नीचे एफसीएफएफ, वर्किंग नोट भी बनानी है. राइट. कैरिन कंपनी और परसूट कंपनी भी अच्छा क्वेश्चन है. परसूट और चिके पे, परसूट अच्छा है ज्यादा. परसूट में एफसीएफएफ रिवाइज हो जाएगा. करेक्ट. और कैरिन कंपनी में पी रेशो. करेक्ट. हैव अ लुक. डब्ल्यूएससी निकालने का. फिर एक प्रॉफिट बेस्ड वैल्यूएशन क्या है, मेथड है. राइट. पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन. पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन का मेन टेबल में आ जाओ जरा. हाँ. अरे फुटे गिला रहे. हाँ. अरे गायब. किधर है टेबल? एक बड़ा टेबल बनाया था ना रे. ये किधर गया रे टेबल? गायब हुआ क्या रे टेबल? सर विजिबल नहीं था लास्ट टाइम. हाँ. ऐसा कैसे हुआ? पूरा एक टेबल बनाया था ना, या इधर बनाया? ऐसा कैसे गायब हुआ रे? है अपने पास, रुको. हम्म 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 हम्म. है ना, ये रहा ना, एमपीएस. हाँ ये रहा. टेंशन नहीं लेने का, अपना सब कुछ है. हम्म 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 हम्म. आ जाओ जरा. पी रेशियो प्लस बिजनेस वैल्यूएशन. अगर आप इंडिविजुअल कंपनी का भी वैल्यूएशन कर रहे हैं या कंबाइंड कंपनी का कर रहे हैं बाय पी रेशियो मेथड. पी रेशियो मेथड बहुत सिंपल है. करेक्ट. इट विल से दैट गेट द ईएईएसएच. बेसिक क्या है, पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस. दोनों को एमपीएस और ईपीएस को मल्टीप्लाई करो बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइड बाय ईएईएसएच इज पी रेशियो. But if I want to find market value and I rearrange the formula will be market value of the company will be nothing but EAESH into the P ratio, total market value. Correct. या मार्केट प्राइस पर शेयर भी अगर फाइंड करना है तो पी रेशियो इंटू ईपीएस करेंगे तो भी काम हो जाएगा. बट यार मोर ऑफ द फोकस इज ऑन EAESH. राइट. EAESH इन सिंपल टर्म्स विल बी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, उसमें से टैक्स माइनस होगा. करेक्ट. जो भी बचेगा that will be used as EASH, that into the P ratio of the
individual company will be considered. But अभी problem क्या है? Whenever you are selling your company, you would not only look at the recently reported ESH, but you will look at prospective earnings that your company can earn, right? Because of some new project or some new working that comes up. So you will take the prospective earnings that is increased due to what? Individual working, correct? And minus tax paid on A above. So if you have any what increase earnings, if it is after tax, then directly add after tax. But if it is given before tax, right, any earnings, because see, when you are selling the company, you would not only consider the profit that is done, you would consider the future profits, correct? So future of profits may the future earnings that you will earn because of a new project coming up, that, and if it is before tax, then deduct tax also on it. If any extra expenses will happen because of, there will be a wording that will be used somewhere, synergy gains will be used, correct? Or synergy, see, synergy in value is a different concept that we have done here. Synergistic earnings hoga, and if it says synergy before tax, means it is going to be synergy in earnings. याद रखना, ये है बहुत सारे in books it is not given, but synergy in earnings is what your used for profit calculation here, correct? And synergy in value will be used in purchase consideration note, right? याद रखना, एक्सपेंस है अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो उस पर टैक्स शील्ड मिलेगा, करेक्ट? एंड EAESH एडजस्टेड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑन करंट टर्म्स, तो ये EASH हो गया, current valuation by future profits, correct? And then multiply by the PE ratio, correct? Then combined company may also same, you will not only take what EASH of one company, but you will take EASH of company A plus company B, both the companies together, PAT, plus if any, because of they both coming together, any synergistic earnings that come up, right? But if synergistic earnings before tax given, तो उसके ऊपर tax paid, but after tax given, then directly take that after tax, because EASH is after tax, you can add any earnings after tax, any extra expense due to the merger, right? And plus any tax shield on extra or what extra expense due to merger will give you EASH. इसमें P ratio also you will generally find what, depending on question, कि P ratio of the combined company will be higher than both the, or will be in the ratio of this and this. तो P ratio तो आपको after merger का P ratio will be given. If you want to revise, honestly, if you want to revise this, तो सच में मैं बोल रहा हूँ, you do Carin company and Pursuit company, तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा सब कुछ सारे तरह के, ये देखो टाइप्स ऑफ सिनर्जी का भी मैंने टेबल बनाया. सिनर्जी इन वैल्यू ड्यू टू टू कंपनीज कमिंग टुगेदर, दिस विल हैव एन इंपैक्ट ऑन कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी आफ्टर मर्जर and will be divided between two companies as per question details and generally used when individual values are given. Synergy in earnings due to two companies coming together, ये P ratio वाले वैल्यूएशन में यूज होगा, करेक्ट? एंड आफ्टर एंड बिफोर टैक्स वाले इम्प्लीकेशन पे ध्यान रखना, करेक्ट? केयरिंग कंपनी ऐसा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन, करेक्ट, जिसमें सारा कुछ हो चुका है. आप एक बार जाके केयरिंग कंपनी करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा. एक छोटा सा नया पार्ट जो मेरे को दिखा, एक पी रेशियो और मल्टीप्लायर ऐसा कुछ पार्ट है कि EASH निकालने का पी रेशियो की जगह पे आपको मल्टीप्लायर दे देते, एक्सपेक्टेड FCFE दे देते, करेक्ट? FCFE देना यानी EASH मिलना आपको, करेक्ट? दैट इज कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट? इंडिविजुअल और कंबाइंड कंपनी, इसमें मल्टीप्लायर यूज करना है. आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन सिगरा या कोई क्वेश्चन में वो है, सिगरा क्वेश्चन में है, सिगरा या सेलॉर्न, दोनों में से, सेलॉर्न था क्या सिगरा था मालूम नहीं, दोनों में से एक ये मल्टीप्लायर मेथड है, आप देख सकते हो जाके, करेक्ट? वैल्यूएशन इक्विटी बाय DVM में कराने वाला भी नहीं, करेक्ट? P0 is equal to D1 upon KE and P0 is equal to D1 upon KE minus G. ये आप एक बार देख लो, मेरे को नहीं लगता ये किधर कुछ आता. CIV एक बार देख लो, नॉट इवन वर्थ अवर टाइम, करेक्ट? बट फिर भी CIV का अगर एक बेसिक देना है तो कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड इंटेंजिबल वैल्यू, करेक्ट? कैलकुलेटेड इंटेंजिबल वैल्यू, हमने क्या करना है, वी हैव अ कंपनी, करेक्ट? एंड देयर इज अ कॉम्पिटिटर, पहले जाना है कॉम्पिटिटर के बिजनेस में, उसका रिटर्न परसेंटेज निकालना है, फिर अपना रिटर्न परसेंटेज निकालना है. अपना रिटर्न परसेंटेज हाउ मच इट इज हायर देन अदर, व्हाट, टेल मी. उसमें भी क्या करना है, हाउ डू यू फाइंड रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न ऑन एसेट निकालना है, दूसरे कंपनी के टोटल एसेट लेने के, उसका प्रॉफिट लेने का, जनरली उसका PBIT लेने का. तो अगर 500 और 50 है, करेक्ट, यानी रिटर्न परसेंटेज 10%.
फिर अपने एम्प्लॉयड एसेट 1500 ही है, तो अपने इधर क्या आना चाहिए था, दिस इंटू 10%, द रिटर्न शुड हैव बीन 150, यानी प्रॉफिट अपना 150 आना चाहिए था, बट अपना प्रॉफिट 250 है, यानी हमारा 100 का ज्यादा वैल्यू है इन प्रॉफिट, करेक्ट। उस पर टैक्स जो पे होगा वो 30 मिलियन माइनस करना है, तो वैल्यू स्प्रेड आफ्टर टैक्स 70 मिलियन आएगा, करेक्ट। एंड देन इट इज कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू बोथ, तो डब्ल्यू एस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ स्प्रेड आ जाएगा, करेक्ट। दिस इज द इनटेंजिबल वैल्यू ऑफ द कंपनी, फिर इसको आप नॉर्मल टेंजिबल वैल्यू में जोड़ दीजिए, ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी है, टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल। 2-3 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैंने सीआईवी बहुत आते हुए नहीं देखा है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन एक जगह पे यूज हुआ है, बुक वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करेक्ट। बुक वैल्यू इज नथिंग बट स्ट्रेट बुक वैल्यू, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, या रियलाइजेबल वैल्यू, एवरी एसेट पे नॉक करो, पूछो क्या वैल्यू है बॉस, एंड एवरी लायबिलिटी की क्या वैल्यू है, डिडक्ट करके वैल्यू ऑफ कंपनी निकालो, दैट इज हाउ इट इज। इसमें एक क्वेश्चन था आई थिंक वो स्टेपल ग्रुप वाला, उसके अंदर ऑल दिस इज डन, तो वो एक आप देख सकते हो। ये रहा मर्जर एंड एक्विजिशन, बट मर्जर एंड एक्विजिशन ऐसे खत्म नहीं होता, आपको एक आधा क्वेश्चन करना पड़ता, तब मर्जर एंड वैल्यूएशन आपको एकदम चकाचक समझ में आएगा, करेक्ट। मेरे को एक आधा क्वेश्चन लेने दो। अभी आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करने का मन है, किसी का है दिमाग में कि अरे ये बहुत डेंजर है, मेरे को वेस्ट पार्ले करने का मन है, वेस्ट पार्ले नहीं तो जोशुआ, दोनों में से एक, आप बोलो कौन सा करना है। वेस्ट पार्ले कर तो दूं? जोशुआ तो इजी है। तो वेस्ट पार्ले कर दूं? वेस्ट पार्ले कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, मातृवर्ष का जो वैल्यूएशन है वो हल्का सा डिफिकल्ट है क्या, मातृवर्ष? सर क्या गरनॉट में प्रॉब्लम थी मेरे को तो। गारनोट में भी प्रॉब्लम है? गारनोट में क्या प्रॉब्लम है, इजी क्वेश्चन है, गारनोट उसमें डिस्कस कर लेंगे, वेस्ट पार्ले सॉल्व कर लेते हैं, हाँ वर्क्स। चलेगा। हाँ, गारनोट छोटा वाला है ना, 25 मार्क है ना, 50 मार्क है? 25 मार्क्स। 25 है तो वेस्ट पार्ले कर लेते हैं, वेस्ट पार्ले को 45 मिनट्स लगेंगे। रुक जाओ, मेरे को पहले वेस्ट पार्ले ले लेने दो। हम्म। सर हम्म। सर एक छोटा सा कंसेप्चुअल डाउट है। हम्म। सर एफसी मतलब एफसीएफएफ, वेदर इट इज एफसीएफएफ वेदर इट इज एफसीएफई, हम्म। हम केई जो भी यूज करेंगे कैलकुलेशन में, इन बोला बोथ ना द मैंने अभी, के जो यूज करेंगे विल ऑलवेज हैव टू बी पोस्ट, गियर्ड। यानी क्या, गियर्ड के, यस, ओके। ऑलवेज गियर्ड के, नो ऑप्शन बट टू यूज गियर्ड के। चलो आ जाओ, वेस्ट पार्ले कंपनी ले लिया मैंने। वैसे तो बहुत क्वेश्चन अपने हो गए क्लास में, आई थिंक मेजोरिटी क्वेश्चन हो गए ना रे, जैसे डिफिकल्ट वाले सारे क्वेश्चन हो गए, बट फिर भी एक ले लेते हैं, देर आर स्टूडेंट्स, उनको टेंशन नहीं आना चाहिए, अपने यहाँ आए हैं तो कुछ तो क्या। आ जाओ क्वेश्चन, और वेस्ट पार्ले दिख रहा है क्या, आ जाओ। सी हाउ आई अप्रोच एनी क्वेश्चन, हाँ देखो एक बार आप, सबसे पहले राइट आई विल लुक एट द क्वेश्चन, क्या चाहिए क्वेश्चन में, करेक्ट। वेस्ट पार्ले कंपनी इज अ लिस्टेड रिटेलर मेनली सेलिंग फूड एंड
small household good. It has outperformed its competitors over the last few years as a result of providing high quality products at reasonable prices and also having a stronger presence online. It has kept a control on cost partly by avoiding operating large stores on expensive city center sites. Instead, it has had smaller stores on the edge of the cities and towns and a limited number of larger stores on convenient out of town sites aiming at customers who want their journeys to shop to be quick. One of its advertising slogans has been "We are where you want us to be." West Parley Company's share price has recently performed better than most companies in the retail sector generally. Share prices in the retail sector have been relatively low as a result of poor results due to high competition. Correct. Large fixed cost. अब कहाँ जा रहे? Recently performed better than most companies in the retail sector. Share prices in the retail sector have generally relatively low as a result of poor results due to high competition, large fixed cost base, and high interest rates. The exception has been shares in retail specializing in computer and high technology goods, right? These shares appear to have benefited from a boom generally in the market. याद करो किसकी बात कर रहा हूं? Tell me. This is a question of what? Tell me. If you see that certain shares are just booming because the sector is booming, tell me, what am I talking about? Bolo. What type of question, theory question, can you expect on this? Bolo. The share market is showing a boom, and hence this stock does not have a lot of what promise. But क्या है? बोलो. याद है क्या? कौन सा? What is this question relating to? बोलो बोलो. We have done this question in class. क्या बोलते हो? विपाशा, हिमांशु, किससे रिलेटेड है भाई? स्टॉक मार्केट क्या है? याद करो किससे रिलेटेड है? बोलो बोलो. देखो आपको बताता हूँ. है क्या इधर? बिहेवियरल फाइनेंस इसमें ही था. क्या हुआ है कि सेक्टर अगर बूम कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, वेस्ट पार्ले कंपनी लिया था मैंने, राइट? ऐसा है. चलो ये थियोरी क्वेश्चन के लिए था पहला पार्ट. मात्रेवर्स कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द लिस्टेड रिटेलर. West Parley Company has identified listed retailer Matreverse Company as an what? Matreverse Company as an acquisition target because it believes that Matreverse Company shares are currently undervalued and part of Matreverse Company operations would be a good strategic fit for West Parley Company. ठीक है. Matreverse Company operates two types of stores. Matreverse Home mainly sells large household items and home furnishing. These type of retailers have performed particularly badly recently, and one major competitor of Matreverse Home has just gone out of business. Matreverse Home operates a number of city center sites, but has a much bigger high proportion of out of town sites than its competitors. ठीक है. Matreverse Tech sells computer and mobile in much smaller outlets than those of Matreverse. Extracts of Matreverse Company's latest annual report are given below. मतलब ये पूरे मात्रेवर्स का एक्सट्रैक्ट है या सिर्फ मात्रेवर्स होम या मात्रेवर्स टेक का है? थोड़ा सोच के बोलो. बोलो. नीचे क्या दिया है? शेयर ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट बिटवीन मात्रेवर्स होम एंड मात्रेवर्स टेक कितना है बॉस? 80:20. करेक्ट. यानी ये 1950 इज इट ओनली ऑफ मात्रेवर्स टेक, मात्रेवर्स होम और कंबाइंड ऑफ मात्रेवर्स टेक एंड होम? पॉइंट है. The current market value of Matreverse Company shares is $12,500 million and its debt is currently trading at its book value. बराबर है. अपने पास डेट है क्या? लॉन्ग टर्म लोन. यस है ना बॉस? 6,500. यानी इक्विटी की वैल्यू 12,500, डेट की वैल्यू क्या है? 6,500. बराबर है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते क्या मात्रेवर्स के? मात्रेवर्स के नंबर ऑफ शेयर्स बोलो. कैन यू रिमूव और टेक द? अभी इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 12,000. बट पूरे फर्म की वैल्यू कितनी बता सकते हो आप मेरे को? फुल फर्म वैल्यू बोलो. फुल फर्म वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म 12,500 किसका वैल्यू है? इक्विटी. और डेट का वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू 6,500. तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना है? 18,500. बराबर है क्या? देख लो. वेस्ट पार्ले कंपनी बिलीव्स दैट इट विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ 15% टू मात्रेवर कंपनी शेयर होल्डर टू बाय द कंपनी. अब आप खाली होम बाय करेंगे, टेक बाय करेंगे या पूरी कंपनी बाय करेंगे? बोलो.
and you have to pay 15% extra to whom? Full company or only the equity shareholder? Only the equity shareholder. West Parle company intends to take advantage of the current values attributable to the business such as Matreverse Tech by selling this part of Matreverse company at the relevant sector price earning ratio of 18 rather than a forecast estimate of Matreverse Tech present value of future cash flows of 4,500. Ayyo, dangerous. The company's tax rate for both companies is 28% post acquisition cost of capital. अब पहले तो यहां आ जाओ, करेक्ट है क्या? ये पढ़ो जरा, सबसे पहले क्या पूछे क्वेश्चन, देखो अब इतना सारा रीड करने के बाद पहले क्वेश्चन पढ़ो. प्रिपेयर अ रिपोर्ट, क्या छोड़ो, कंपेयर द एडिशनल वैल्यू विच वेस्ट पार्ले कंपनी बिलीव्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ मात्रेवर्स टेक बेस्ड ऑन पीई रेशियो विद दैट ऑफ द प्रोजेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो. एक मिनट 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 एक मिनट, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, इधर है, आ जाओ आराम से. West Parle intends to take advantage of the current values attributable to business, such as Matreverse Tech, by selling this part of Matreverse Tech as the relevant sector price earning ratio of 18, rather than the forecast, क्या है, estimate of Matreverse Tech present value of future cash flow 4,500. ये मेरे को बताओ करना क्या है और कैसे है, बोलो बोलो, हाउ टू डू दिस. मेरे पास इसका आंसर रेडी, आपको बता सकता हूं क्या, बोलो बताओ क्या. देखो पहले मेरे को बताओ कि वैल्यूएशन कैसे करना है बेस्ट पार्ले का. शुड इट बी डन पी बाय, रेशो. हाँ, पी रेशो. पी रेशियो यानी ईएईएसएच निकालना पड़ेगा, बराबर है. ईएईएसएच का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का शेयर कितना है मात्रेवर्स टेक का? 20%. 20%. 20% ऑफ व्हाट? दिस प्री टैक्स प्रॉफिट. अब लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट दिया है क्या, देखते जरा नीचे. द पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंबाइंड ऑफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, ठीक है. एसेट बीटा पोस्ट एक्विजिशन कैन बी अज्यूम टू बी बोथ कंपनीज एसेट बीटा weighted in the proportion of current market value of equity. West Parle company has 4,000 million $1 shares in issue currently trading. Matrever company का एसेट बीटा दिया है, राइट. 12,000 लॉन्ग टर्म, currently trading at book value 6,000, current risk free rate of return 3 point, market risk premium is the pre-tax cost of combined 9.8. अरे यार, फिर मात्रेवर्स का केडी दिया है क्या किधर माइनस करने के लिए? ये 6,500 पे कितना लोन भरेंगे? ये 6,500 पे इंटरेस्ट कितना है दिया है क्या किधर, बोलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और नो? देखो सिंपल है, मेरे को बहुत सिंपल अंडरस्टैंड हो रहा है. परचेस कंसिडरेशन का नोट पहले ड्रॉ करना पड़ता, करेक्ट. रुको, बहुत सिंपल. फर्स्ट वर्किंग कैपिटल अपना क्या, परचेस कंसिडरेशन का नोट. व्हाट इज द परचेस कंसिडरेशन नोट फॉर्मेट, करेक्ट. अब देखो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं परचेस कंसिडरेशन, कहीं ना कहीं परचेस कंसिडरेशन यूज होने वाला है. देखो, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज, ठीक है. एस्टिमेट द टोटल वैल्यू विच वेस्ट पार्ले कंपनी शेयर होल्डर विल गेन फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ मात्रेवर्स कंपनी. ये तो आपको बोला ही है, 10 मार्क का वो परचेस कंसिडरेशन का नोट ही है, निकाल लेते. परचेस कंसिडरेशन नोट, आई वुड डू व्हाट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन डॉलर. अब पहले डिसाइड कर लेता अमाउंट इन डॉलर मिलियंस लेने का. वेस्ट पार्ले कंपनी एंड दूसरा क्या है भाई तुम्हारा, मात्रेवर्स टेक या मात्रेवर्स कंपनी, दोनों मिला के, ठीक है, एंड कंबाइंड. चलो आ जाओ.
आज सबसे पहले ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स दिए है क्या? नहीं दिए तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेस्ट पार्ले का कुछ दिया है क्या? देखो। मात्रे वर्ष का दिया है ना रे? ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ निकाल सकते हैं अपन। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स इज 5000 डॉलर मिलियन, बराबर है। ओल्ड वैल्यू पर शेयर, ओल्ड वैल्यू पर शेयर नहीं दिया, वो टोटल वैल्यू दिया है क्या? टोटल वैल्यू पर शेयर, टोटल वैल्यू पर शेयर कितना है? 12,000 टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो 12,500 यानी पर शेयर वैल्यू कितना है? दिस डिवाइडेड बाय दिस 2.5, करेक्ट। देन क्या करे? 12,500 और डेट भी अगर दिया है तो डेट वैल्यू ले लो, क्या मालूम पीछे कहीं याद आ काम आ जाए। ओल्ड डेट वैल्यू, ठीक। अब चलो आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर, करेक्ट। आ जाओ, चले आ जाओ। अब सबसे पहले सर आफ्टर मर्जर का तो कुछ भी मालूम नहीं है। आफ्टर मर्जर डू यू नो एनीथिंग? बोलो। कुछ भी मालूम नहीं सर, जानना भी नहीं है कुछ, करेक्ट। अभी के लिए पहला क्वेश्चन 4 मार्क का क्या बोल रहा है? वैल्यू, पहले तो वैल्यू की बात होगी, बराबर है। और क्या है? WACC कैलकुलेट करना है, ठीक है। इधर जगह छोड़ दो, जितना आपको आ रहा था आपने भर दिया, आगे का आगे देखेंगे, बराबर है क्या? देख लो, आ जाओ। ये आ गया क्वेश्चन पहला वाला, क्या है? कंपेयर एडिशनल वैल्यू, एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बाय PE बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक, ऑफ मात्रे वर्ष टेक, राइट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन, ठीक। हम्म, सबसे पहले ले लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल, PBIT टोटल 1950, PBIT एट्रीब्यूटेबल टू, PBIT एट्रीब्यूटेबल टू क्या? एक मिनट, नहीं रुको, पहले PBIT टोटल लेके ब्याज माइनस करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट, या इधर ही माइनस कर दो? बोलो मात्रे वर्ष टेक पे कितना ब्याज का परसेंटेज, इंटरेस्ट परसेंटेज, गिवन और नॉट गिवन? टेल मी, कुछ दिया है? बोलो। मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा है क्या? दिया है? व्हाट विल बी KD, कुछ दिया है क्या? इधर नीचे तक देखो, KD किधर दिया है क्या? KD, KD प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कंबाइंड कंपनी 9.8%. It can be assumed debt equity ratio will be the same as West Parley's current debt equity ratio in market values. क्या करूं बोलो, टेल मी। वेस्ट पार्ले कंपनी का क्या करने का मेरे को अभी के लिए? हाँ है ना, 4,000, ये ऊपर लिख सकता हूं मैं, 4,000 शेयर्स, करेक्ट। हैज $1 शेयर इन इशू करंटली एट 8.5, यानी दिस इनटू दिस, चलो ये भी हो गया, ओके। क्या करूं मेरे को बोलो, मेरे को माइनस तो करना पड़ेगा कुछ PBIT में से, ये तो बोलो। ये लॉन्ग टर्म लोन का कुछ तो परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट, या चलेगा? ये प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब क्या? PBIT है या PBT है? बोलो। सर PBT। PBT है डायरेक्ट, PBIT है ही नहीं, तो माइनस डायरेक्ट टैक्स करने का है, या इसका डायरेक्ट PBT 20% एट्रीब्यूटेबल टू क्या? मात्रे वर्ष टेक, देख लो भाई, मात्रे वर्ष टेक को इसका 20% एट्रीब्यूटेबल है, करेक्ट। और इसमें से अगर टैक्स माइनस होता है, टैक्स एट 28%,
This into 28% gives you what? PAT और EAESH, राइट? EAESH आ गया, PE रेशियो दिया हुआ है, कितना है PE रेशियो? 18 टाइम्स, राइट? सो वैल्यू ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी कितना है बाय PE रेशियो? कितना है कंपेयर्ड टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो ऑफ फ्यूचर फ्री कैश फ्लोस मेथड? कितना है? 4500, राइट? एडिशनल वैल्यू कितनी है? कितनी की एडिशनल वैल्यू क्रिएट आपने? देख लो, 554.44 की, 554.4 की एडिशनल वैल्यू क्रिएट की है क्या? यस, बराबर है क्या? आ जाओ, एनी प्रॉब्लम विद दैट? एक बार पढ़ लो प्लीज, अगर होगा तो पूछ लो। यही है जो है करेक्ट। चलो आगे मैं, कैन आई गो अहेड गाइस? बोलो, चलो चलो। पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब पोस्ट एक्विजिशन कंबाइंड कंपनी की वैल्यू मालूम नहीं, द पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंबाइंड कंपनी विल बी बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। बराबर है क्या? देख लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ debt. The asset beta post acquisition can be assumed to be both companies asset betas weighted in proportion of the current market value of equity. देखो भाई, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है क्या आपके पास? बोलो। 34,000 इज टू 12,500। तो वेस्ट पार्ले कंपनी हैज 400,000 मिलियन और डेट भी दिया हुआ है। इधर भी अगर आपको डेट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। इट हैज 26,000 का डेट है, डेट की ओल्ड वैल्यू। आगे कुछ काम आने वाला नहीं, बट लिख के रखो, मे भी कुछ काम आ जाए, राइट? करंटली ट्रेडिंग इन इशू है, नहीं करंटली ट्रेडिंग एट, सॉरी, मार्केट वैल्यू अगर लिखना है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 105, यानी करीबन 27,300 का डेट है। इट हैज इक्विटी बीटा ऑफ हाउ मच? 1.02। इक्विटी बीटा कितना है? 1.02। हम लोग क्या बीटा एसेट निकाल सकते हैं इसका? अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, WACC कैलकुलेट करना पड़ता। WACC क्या बोला है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कंबाइंड कंपनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंबाइंड कंपनी, करेक्ट? उसमें आपको बीटा इक्विटी दिया गया है सबसे पहले, रुको, राइट? बीटा इक्विटी पर्टिकुलर देन अमाउंट ले लो, अमाउंट ही रहने दो खाली, मिलियंस वगैरह अपना कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो आ जाओ, शांति से, गड़बड़ नहीं करने का। वेस्ट पार्ले का बीटा इक्विटी दिया है क्या? यस, पहले उसका बीटा एसेट निकालो। वेस्ट पार्ले कंपनी बीटा इक्विटी, करेक्ट? कितना है बीटा इक्विटी? 1.02, राइट? फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 4,000, या वी हैव दिस वैल्यू ऑफ इक्विटी हियर, ओल्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये रहा। वैल्यू ऑफ डेट कितना है? ये रहा 27,300। फिर टैक्स रेट, करेक्ट? तो बीटा एसेट ऑफ वेस्ट पार्ले, ठीक, कैसे निकालोगे? बोलो, हाउ डू यू डू इट? बीटा एसेट निकालना है, कैसे निकालोगे? बोलो। 34,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 1 माइनस 28%, बराबर है क्या? दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 1.02, बराबर है क्या बाबा? वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी डिवाइडेड बाय वी, ठीक, कितना है? 0.65 समथिंग, करेक्ट?
0.65। ठीक है, बीटा एसेट ऑफ वेस्ट पार्ले। आगे बढ़ो फिर, ये आ गया बीटा एसेट ऑफ वेस्ट पार्ले। आगे बढ़ते हैं, यही सेम चीज कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट इसमें मात्रे वर्ष का एसेट बीटा, अरे मात्रे वर्ष का एसेट बीटा दिया है, बीटा एसेट ऑफ मात्रे वर्ष कितना है 0.75। करंट मार्केट वैल्यू ठीक है, ट्रेडिंग एट 6500, रिस्क फ्री रेट इज 3.5। चलो अब क्या बोला है, एसेट बीटा वेटेड, वेट ऑफ बीटा एसेट ऑफ वेस्ट पार्ले मात्र वर्ष, वो क्या होना चाहिए, योर इक्विटी वैल्यू। इधर इक्विटी वैल्यू है दोनों की 34 और 34:12,500। तो आ जाओ, टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल ले लेते हैं। फिर वेटेड बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, वेटेड बीटा ऑफ बोथ कंपनीज। आ जाओ, आपका जो ये इधर बीटा आया, बीटा एसेट 0.65 इंटू 34,000 डिवाइडेड बाय 46,500 एक ब्रैकेट में, प्लस इधर दिया हुआ है 0.75 इंटू क्या है 12,500 डिवाइडेड बाय 46,500। ये करके आपका वेटेड बीटा एसेट ऑफ बोथ द कंपनीज आ जाएगा। वेटेड बीटा एसेट ऑफ बोथ द कंपनीज 0.68 के आसपास आ जाना चाहिए, बराबर है क्या 0.68। ये हो गया वेटेड बीटा एसेट। फिर बीटा एसेट से अब बीटा एसेट ऑफ कंबाइंड कंपनी आ गया, इसको रीगियर करना पड़ेगा 0.68, करेक्ट। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंबाइंड कंपनी कितना है एंड वैल्यू ऑफ डेट ऑफ कंबाइंड कंपनी कितना है। कंबाइंड कंपनी का दिया है क्या भाई, देखो मात्रे वर्ष, द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द कंबाइंड कंपनी, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंबाइंड कंपनी। ओके, यानी जो ऊपर का डेट इक्विटी रेशियो है ना, ऑफ व्हाट, टेल मी, यही वेस्ट पार्ले का ही डेट इक्विटी रेशियो विल बी द डेट इक्विटी रेशियो, यानी 34,000:27,300। तो टोटल या बीटा एसेट ऑफ कंबाइंड कंपनी। चलो ये कैसा करेंगे बोलो, इट विल बी 0.68 इंटू ब्रैकेट ओपन 34,000, एक और ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, 34,000 प्लस ब्रैकेट ओपन 27,000 इंटू 1 माइनस 0.28, ये हो गया डिवाइडेड बाय 34,000, 1.07 समथिंग आएगा, 1.07, ठीक है क्या 1.07 बीटा एसेट आ गया। आरएफ है अपने पास और मार्केट रिस्क प्रीमियम है एमआरपी, करेक्ट। आरएफ कितना है, कंबाइंड कंपनी नहीं, आरएफ तो 3.5%, एमआरपी इज मार्केट रिस्क प्रीमियम एस्टिमेटेड टू बी, हाँ 8%, करेक्ट। तो केई फॉर कंबाइंड कंपनी कितना है बोलो, केई फॉर कंबाइंड कंपनी वुड बी 3.5 प्लस ब्रैकेट ओपन 1.07 इंटू दिस 8%, यानी 12.08% आएगा, 0809। केई आ गया, केडी बिफोर टैक्स है कितना है ऑफ कंबाइंड कंपनी 9.8% टैक्स, बट अपने को तो केडी 1 माइनस टैक्स रेट लेना है, करेक्ट। इज इक्वल टू दिस इंटू 1 माइनस 0.28, केडी आ गया। वी ऑलरेडी हैव द वीई ऑफ कंबाइंड कंपनी ईयर, वही लेना है अपने को, वीई ऑफ कंबाइंड कंपनी, वीडी ऑफ कंबाइंड कंपनी, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट, वही जो वेस्ट पार्ले का होगा, वही डेट इक्विटी का रेशियो बोला गया है, करेक्ट। तो आ जाओ, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, टेल मी, WACC निकालो, WACC इज इक्वल टू व्हाट 34,000, या इसको टोटल कर लेते हैं, करेक्ट। तो WACC हाउ विल वी कैलकुलेट, 34 डिवाइड बाय 61,300 इंटू 12.08 प्लस 27,300 डिवाइडेड बाय 61,300 इंटू
7.06, 9 point somewhere around 9.85 या 9.99%। उन्होंने से 10% लेके ले लिया है। ठीक है, देख लो एक बार। से 10%। हाँ बोलो, सॉरी। for combined company. हाँ हाँ 9.85 बराबर। और कुछ डाउट है आपका? देख लो। सेकेंड क्वेश्चन कितने मार्क है देखो ना, WACC के कैलकुलेशन के लिए कितने? 6 मार्क। 4 और 6 तो आपके सही हो गए। एस्टिमेट द टोटल वैल्यू ऑफ वेस्ट पार्ले कंपनी शेयर होल्डर्स विल गेन फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ मात्रेवर्स। चलो आ जाओ। चलो अब ये हो गया WACC। प्लान्स फॉर मात्रेवर्स कंपनी। द ऑफर फॉर मात्रेवर्स कंपनी विल बी अ कैश ऑफर, एनी फंडिंग रिक्वायरमेंट। बट एक मिनट शांति से, कैश ऑफर होगा, विल बी, यहां लेकिन बोला गया है, जरा ये पढ़ो। द करंट मार्केट वैल्यू इज 12,500 एंड इट्स डेट इज करंटली ट्रेडिंग एट इट्स बुक वैल्यू। वेस्ट पार्ले कंपनी believes that it will pay a premium of 15% to मात्रेवर कंपनी शेयर होल्डर्स टू बाय द कंपनी। एक मिनट, फिर इधर आफ्टर मर्जर, करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू पर शेयर, करेक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर कैश, कैश पेड। मेरे को एक तो मालूम है, मैं कैश पेड कितना करने वाला हूं, 12,500 टू 1.15। ये मेरा परचेस कंसिडरेशन है, राइट? दिस आई नो। जो अभी बेसिक, आगे थोड़ा कुछ चेंज हुआ तो मालूम नहीं, बट बेसिक पढ़ के आई कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो चलो आगे। फिर द ऑफर फॉर कैश ओनली, ऑल्दो द पर्पस फॉर द कैलकुलेशन इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द ओवरऑल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विल रिमेन द सेम। ठीक है, द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग वेरियस प्लान्स फॉर फंडिंग द purchase which could result in a change in West Parle company's gearing. ठीक है, as soon as it acquires all of Matrever's share capital, West company would sell Matrever's stake as it does not fit in with West Parle company strategic plans, and West Parle company wishes to take advantage of the large values attributable to the high technology business. West Parle could then close Matrever's home worst performing city center store, right? It anticipates the loss of the return. ठीक है, right, all generated by increased investment in its online operations. The remaining city center stores and all out of town stores would start selling the food and household items currently sold in West Parle company store. They will increase profit from these stores. ठीक है, once Matrever's stake has been sold, West Parle company estimates the sales revenue from the Matrever's stake which remain open together with the online sales from its home business will be 43,260 in the first, क्या है, the online sales बोला है 43,260 in the first year post acquisition, and this figure is expected to grow by 3% per year in the year 2 to 4। अब एक सेकेंड ना, आपने कैश पे किया मात्रेवर्स कंपनी को 14,375, बट टेल मी, आपको कुछ, यू गेट द फुल मात्रेवर्स कंपनी, उसमें आपने कुछ सेल किया क्या मात्रेवर्स कंपनी का? कोई एक बिजनेस सेल कर दोगे आप? व्हाट इज दैट बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू सेल? टेल मी। मात्रेवर्स टेक विच इज व्हाट 20%, वो सेल कर दोगे क्या? मात्रेवर्स टेक सेल कर दोगे, उसमें कितना पैसा मिलेगा रे? इफ यू आर सेलिंग यूजिंग दिस मेथड, कौन सा वाला, पी रेशियो से सेल करोगे तो कितना पैसा मिलेगा? टेल मी, हाउ मच मनी विल यू गेट? 14,375 में यू परचेस मात्रेवर्स एंड यू सोल्ड द मात्रेवर्स टेक का बिजनेस। अब ये जो है ना, ये जो अभी डिटेल दे रहे, ये इधर, आर दे गिविंग फॉर फुल मात्रेवर्स कंपनी और ओनली वेस्ट पार्ले एंड मात्रेवर्स होम? इतना ही दे रहे, थोड़ा पढ़ के बताओ। पोस्ट एक्विजिशन डिटेल्स बोलो। होम्स। अब उसमें भी करेक्ट, once Matrever's stake has been sold, West Parle company estimates the sales revenue from Matrever homes stores which remain open together with the online sales from its home business
will be 43,260 in the first year post acquisition, and the figure is expected to grow by 3% in year 2 to 4. The profit margin before interest and tax is expected to be 6% of sales revenue in year 1 to year 4. Tax allowable depreciation is assumed to be equivalent to the. अब ये खाली मात्रेवर्स होम है या पूरा वेस्ट पार्ले एंड मात्रेवर्स होम है? ये 43,260, ये बोलो बोलो। कंबाइंड वैल्यू ऑफ फर्म है, कंबाइंड वैल्यू है सर, क्योंकि पोस्ट कंबाइंड वैल्यू है। एक्विजिशन है ना। हाँ, तो वेस्ट पार्ले सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द मात्रेवर्स होम स्टोर विच रिमेन्स ओपन टुगेदर विथ ऑनलाइन सेल्स फ्रॉम इट्स होम बिजनेस, यानी खुद का बिजनेस, राइट। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी। बट सुनो बट क्या है वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी? सुनो, वेस्ट पार्ले प्लस ओनली मात्रेवर्स होम, राइट, यानी मात्रेवर्स टेक अवेलेबल नहीं है। बराबर है क्या? आराम से, गड़बड़ नहीं, करेक्ट। कुछ नहीं, मेरे को कंबाइंड वैल्यू तो निकालने को आती ना, मेरे को बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है। मेरा परचेस कंसिडरेशन का नोट शायद गलत हो जाए, पूरी तरह से नहीं, बट सम पार्ट ऑफ इट। 4 इयर्स का मेरे को होराइजन पीरियड समझ में आ रहा है। आ जाओ। आ जाओ 43। फिर चलो 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 आ जाओ। तो ये रहा सेल्स, करेक्ट। 43 जीरो तो ये इधर लेना ही नहीं है। आ जाओ, सेल्स कितना है? 43,260, बराबर है ना। एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3% इंटू 1.03 फ्रॉम 2, 3 एंड 4, करेक्ट। फिर पीबीआईटी कितना है? प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 6%, दिस इंटू 6%, बराबर है क्या? ये हो गया पीबीआईटी। फिर टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इज अज्यूम्ड to be equivalent to the amount of investment needed to maintain existing operation. However, an investment in asset including working capital will be required 630 million. अब मेरे को बोलो मैंने इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए क्या? हैव दे टोल्ड यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी? कैसे फाइंड करोगे? एफसीएफएफ या एफसीएफई? थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एफसीएफएफ बराबर है, ठीक है। आ जाओ जरा। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन अज्यूम टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है। हाउएवर एन इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स विल बी रिक्वायर्ड ऑफ 630 million in year 1, in year 2 to 4 investment in asset each year will be 0.5, ठीक है। आफ्टर 4 years the annual growth rate of the free cash flow is expected to be 2%, यानी 5 से आगे, 5 to perpetuity, क्या होगा? 2% का कुछ ग्रोथ रेट आएगा, देखेंगे। फॉर द foreseeable as well as the free cash flow for Matreverse company, right? West Parle company expects that post-tax synergy will arise from its reorganization of Matreverse company as follows in next 3 years, right? ये क्या है? यहां पे गाड़ी आके रुकती है, ठीक है। चलो, मेरे को जो आ रहा है ना मैं वो कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट इधर से टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितने पे? एट 28%, करेक्ट। ये हो गया टैक्स एट 28%, राइट। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है क्या? देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अभी क्या करना पड़ेगा? टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इज अज्यूम्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड टू एग्जिस्ट टू मेंटेन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। तो कुछ डेप्रिसिएशन भी लेने की जरूरत नहीं, एनसीए भी लेने की जरूरत नहीं, राइट। हाउएवर एन इन्वेस्टमेंट इन एसेट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड ऑफ 630 million। तो वर्किंग कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इन एनसीए in first year of 630 million, correct, in year 1, in which year in year 2 to 4 investment in asset each year will be $50
और तो फिर ये एनसीए नहीं, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बराबर है 6 कितना 30 इन एसेट्स ईयर विल बी 0.5 एवरी 1 ईयर इंक्रीज इन सेल, यानी देखो ऐसा करना पड़ेगा दिस माइनस दिस, करेक्ट 0.5 इंटू 0.5 बराबर है ना। हाँ कितना है, इन्वेस्टमेंट इन एसेट ईच ईयर विल बी 0.5 एवरी $1 इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू बराबर है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू 0.5 और ये 1 मिनट बराबर है ना। और इसमें से 630 माइनस होगा क्या, यस बराबर है ना। देख लो दिस माइनस ये माइनस और ये माइनस, करेक्ट, और फिर ये और ये तीनों माइनस, देख लो 20.051 बराबर है क्या, देखो प्लीज। अरे नहीं रे, डायरेक्ट 50% है तो पूरा ही आएगा ये, हर साल उतना क्या होगा, ऐड होगा बराबर है क्या। एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है क्या, देख लो। ओके, आफ्टर 4 years एनुअल ग्रोथ ऑफ फ्री कैश फ्लो, तो पहले फ्री कैश फ्लो निकाल लो, करेक्ट, क्या है सम, ये ग्रो करेगा बाय 2%, 1.02, राइट। देन वी ऑलरेडी हैव द WACC ऑफ कंबाइंड कंपनी, WACC ऑफ व्हाट, कंबाइंड कंपनी, चलेगा ना, देख लो बराबर है। कंबाइंड कंपनी और या डिस्काउंटिंग फैक्टर एट WACC ऑफ कंबाइंड कंपनी कितना, 10% लिया था ना अपन ने, 10%, यानी 1/1.10, करेक्ट। और इधर भी वही लगाऊंगा और फिर परपेचुटी फैक्टर भी लगा देता हूँ, परपेचुटी विथ ग्रोथ फैक्टर है, करेक्ट, यानी यहाँ आएगा 1/0.1 माइनस 0.02, बिकॉज ग्रोथ 2% की है, करेक्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFF दिस इनटू दिस, लास्ट में दिस इनटू दिस इनटू दिस, ठीक है। देन सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFF सम सारों का, ठीक है, हैव अ लुक, राइट। कुछ 15,000 क्या आएगा, 870, 881, ठीक है। अब ये इसमें से डेट माइनस कर सकते क्या, डेट, बट डेट को माइनस करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, ठीक है। फिर ये जो दिया है ये क्या है, आराम से, as well as the free cash flow for Matreverse company, West Parle company expects that post tax synergy will arise, यानी ये जो कैश फ्लोज है ये मात्रेवर्स की वैल्यू है, वेस्ट पार्ले की वैल्यू है, या सिनर्जी की वैल्यू है, कैश फ्लो की, कैश फ्लो है जो वैल्यू ऑफ सिनर्जी निकालने के लिए हेल्प करेगा, बराबर है क्या। सेम कैश फ्लोज इससे क्या होगा, कंबाइंड कंपनी में और सिनर्जीज ऐड होंगी, ये 15,881 में ये सिनर्जीज भी ऐड होगी, बराबर है क्या, देख लो। और ये सिनर्जी किसकी वजह से, एज वेल एज फ्री कैश फ्लो फ्रॉम मात्रेवर्स कंपनी, ये मात्रेवर्स कंपनी की सिनर्जी है। तो मात्रेवर्स कंपनी का जो 12,500 का वैल्यू है उसमें ये सिनर्जीज की वैल्यू ऐड होंगी, यानी मात्रेवर्स कंपनी आफ्टर मर्जर कितनी वैल्यू है भाई, देखो बेसिक तो 12,500 है, उसके ऊपर ये सिनर्जी की वैल्यू है, दिस इज द हिडन एडजस्टमेंट, क्या लिखा है वही समझ में नहीं आएगा आपको एग्जाम में, बराबर है क्या, नहीं समझ में आता है, ऐसा क्वेश्चन किया नहीं होगा तो, करेक्ट। इसको यही कैश फ्लो है, सिनर्जी कैश फ्लोज यानी वैल्यू है, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू निकल के आएगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% पे, राइट, 1/1000
1.1, राइट। और इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी निकालेंगे, करेक्ट, तो आ जाएगा करीबन, क्या है, दिस इनटू दिस टोटल सिनर्जी, जो कि एट्रीब्यूटेबल है किसको, ये सिनर्जी 1842 की सिनर्जी एट्रीब्यूटेबल होगी किसको, मात्रे वर्ष को, करेक्ट। देख लो, अब मात्रे वर्ष को टोटल सिनर्जी कितनी एट्रीब्यूटेबल है, 1842 इन वैल्यू, चले क्या। ये वर्ड मात्रे वर्ष को नहीं है, ये मात्रे वर्ष प्लस वेस्ट पार्ले, राइट, दोनों की है, बराबर है। यानी ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफएफ है ना, इसमें ये 1842 ऐड हो जाएगा, बराबर है क्या। देख लो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चलो, क्या करना पड़ता अभी, बोलो, व्हाट टू डू नाउ। टोटल सिनर्जीज भी आ गई, क्या करोगे बोलो। ये वर्किंग नोट कैसे यूज होगा, एक सेकेंड। चलो अभी कैसा करेंगे, बोलो, कैसा कामकाज करेंगे बोलो, हाउ विल यू वर्क दिस आउट। देखो, आफ्टर मर्जर कंबाइंड वैल्यू आपके पास है क्या, इक्विटी और डेट दोनों की। आफ्टर मर्जर कंबाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट है कि नहीं है, हाउ टू डू दिस, टेल मी। ये 15,881 क्या है और ये 1842 क्या है, ये भी क्या वैल्यू ऑफ कंबाइंड हाँ, कंपनी। हाँ, टेबल में सिनर्जी का वैल्यू अलग से नहीं जाएगा मतलब, सिनर्जी का वैल्यू अलग से जाएगा, ठीक पर है। ये कंबाइन में फिर ऐड क्यों करेंगे हम। हाँ, फिर कंबाइंड में, ये आपको पता चला क्या कुछ, ये 15,881 है, ये क्या कंबाइंड वैल्यू है क्या, देखो जरा, या ये खाली मात्रे वर्ष होम का वैल्यू है, ये खाली मात्रे वर्ष, यही पे गलती होती है आपकी। ये क्या है, ये खाली किसका वैल्यू है बॉस, मात्रे वर्ष होम का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, मात्रे वर्ष होम। ये भी जो है मात्रे वर्ष की वजह से जो सिनर्जी आएगी उतना एट्रीब्यूटेबल है क्या, यस। यहीं पे तो गलती हो गई, देखो आप सोचो ना, सुनो, आपका वेस्ट पार्ले कंपनी का कितना वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू ऑफ डेट, ओल्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ मेरे को। वेस्ट पार्ले का ओल्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 34,000। मात्रे वर्ष का ओल्ड वैल्यू कितना है, 12,500। मेरे को बोलो आप, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, कंबाइंड कंपनी कभी 15,000 आएगी क्या, 15,000, इफ दीज टू आर ओनली 34 एंड 12। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बोलो। अब देखो, आपने कैश पेड किया, करेक्ट, और आपको कैश रिसीव हुआ क्या, फॉर सेल ऑफ मात्रे वर्ष टेक। मात्रे वर्ष टेक के लिए पैसा कितना मिला, बोलो, पैसा कितना मिला वेस्ट पार्ले कंपनी को, कितना कैश मिला, कैन यू टेल मी। इफ दे सेल इट एट दैट पीई के वैल्यूएशन पे, पैसा कितना मिला, कैन यू टेल मी। फुल कंफ्यूजन है कि नहीं, क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बोलो, क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, टेल मी, क्विकली टेल मी। देखो, ये कैश में इनको तो नंबर ऑफ शेयर तो कुछ भी नहीं मिलने वाले, 14,375 आपने पे किया, आपका काम हो गया, बराबर है क्या, इसमें कोई डाउट किसी को, बोलो।
14,375 ये परचेस कंसिडरेशन के नोट की जरूरत भी है क्या? अभी सोच के देखो। अब वेस्ट पार्ले कंपनी, एक मिनट आराम से, वेस्ट पार्ले कंपनी ने कैश कितनी पे की बोलो? गेन, करेक्ट। इसमें आपका शायद ऊपर का नोट में भी आप कर सकते थे, करेक्ट, आराम से। वेस्ट पार्ले कंपनी ने सबसे पहले कैश पे की कितनी बोलो? कैश पे फॉर फुल मात्रे वर्ष कंपनी, बोलो कैश पेड फॉर फुल मात्रे वर्ष कंपनी कितना? 14,375। फिर कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड किसके? कैश रिसीव्ड कहां से मिला है बोलो? बाय सेल ऑफ मात्रे वर्ष टेक। अब मैं आपको ऑप्शन दू, मात्रे वर्ष टेक को सेल करो या तो 4,500 पे, या तो 4,500 पे, या तो ये जो 5058 कुछ वैल्यू निकाली थी ना उस पे। आप किस पे सेल करना चाहोगे बताओ मेरे को? आपने निकाली है ये वैल्यू, कितने पे सेल करोगे? 558 समथिंग आया था ना, 5558, ये 5054, इस पे सेल करोगे, ये पैसा मिलेगा आपको, बराबर है? देख लो, यानी आपको नेट कैश या नेट कंसिडरेशन कितना पड़ा बताओ मेरे को? नेट कंसिडरेशन पेड फॉर ओनली मात्रे वर्ष होम, पेड ओनली फॉर मात्रे वर्ष होम, दिस प्लस दिस कितना? 9320 पे करना पड़ा, बराबर है क्या? इसमें कोई डाउट किसी को बोलो? ओके, टेल मी, बोलो बोलो बोलो, ओके है क्या? Yes, sir. राइट, इसमें कोई टेंशन? तो आगे अभी क्या कर सकते हैं बताओ मेरे? टेल मी टेल मी टेल मी, बोलो बोलो बोलो। राइट, और आपको एक्चुअली मात्रे वर्ष कंपनी की वैल्यू कितनी है? 15,881, और सिनर्जी कितना है? 1842, राइट। एक्चुअल वैल्यू मात्रे वर्ष कंपनी कितना है देखो सर, 9320 पे किया, बट हमको वैल्यू कितने की मिली? मात्रे वर्ष कंपनी विदाउट मात्रे वर्ष टेक, दिस प्लस दिस, राइट। यानी गेन कितना हुआ? गेन टू शेयर होल्डर्स बाय पेइंग 9320, आपको कितना? 98403 का क्या हो गया बोलो जरा? गेन हो गया क्या देखो? 8403 का 17,000 की कंपनी, बराबर है ना? कितने में मिल गई बोलो? देखो देखो देखो, बोलो ओके है क्या? एक मिनट रुको, ये 5054932017,723, ठीक है 15, ए नहीं नहीं नहीं, इसमें से हमने, एक सेकंड एक सेकंड, और इसमें से, नहीं 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 सॉरी, इधर हमने, नहीं नहीं इधर फिर हमको, इधर डेट कंसिडर किया है ना रे, डेट माइनस करना पड़ेगा इधर, क्योंकि सारा इक्विटी है ना, माइनस डेट कर लो। डेट कितना है? 6500, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, या ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, करेक्ट, कितना है? दिस माइनस दिस, हाँ अब ये बराबर है। अब देख लो जरा, 87 की जगह पे 89 देना पड़ेगा। 1903 के आसपास आपका क्या है? गेन टू शेयर होल्डर है, गेन टू शेयर होल्डर ऑफ, क्या है तुम्हारा? कौन सा है कंपनी भाई वो? वेस्ट पार्ले, और उनका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं डाल दे, अगर नंबर ऑफ शेयर 4,000 है तो गेन पर शेयर कितना है? 4 रुपया कुछ आएगा, 4 या 5 रुपया, या 0.47, करेक्ट, ऐसा है बॉस, करेक्ट। तो 1903 का गेन है टू शेयर होल्डर्स। यहां पे भी आप निकाल सकते थे क्या? अरे निकाल सकते थे ना, क्यों नहीं, राइट। 14,375, देखो आफ्टर मर्जर
इस 14,375 में से आपको रिसीव कितना हो गया, बोलो रिसीव कितना हो गया? ये जो 5054 आपने रिसीव किया ना, ये 5054 रिसीव हो गया, माइनस हो जाएगा वो, बराबर है। रिसीव्ड नेट पेड एंड रिसीव्ड फॉर मात्रेवर्स टेक, ठीक है, ये हो गया 9320, करेक्ट, ये देख लो, राइट। और आपको जो मात्रेवर्स कंपनी का वैल्यू मिला, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी या टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, या वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आपने निकाला है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है देख लो जरा। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी इधर हमने निकाला है 9381 प्लस ये 1842, टोटल सिनर्जी देख लो, बराबर है क्या? इधर से भी कर सकते थे आप, राइट। रुको रे, हाँ बराबर, 9320 देके आपको 11223 की वैल्यू मिली, यानी यहाँ पे आपको कितना, आपको पे करने के बाद कितना क्या मिला, गेन मिला, दिस माइनस दिस 1903, क्योंकि आपका तो इनका तो सिनर्जी कैलकुलेट हो चुका है, सिनर्जी, राइट, इनका सिनर्जी कैलकुलेट हो चुका है, दिस माइनस दिस, करेक्ट, ऐसा है। तो इसमें शायद अपना वर्किंग नोट नहीं चलेगा, राइट, तो नीचे मैंने वर्किंग नोट बता दिया है कि कितना गेन हुआ मात्रेवर्स टेक का, सॉरी वेस्ट पार्ले का, ऑन परचेस ऑफ व्हाट, रेडमी, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है क्या? देख लो, दिस इज द क्वेश्चन, राइट, आराम से गो हैव अ लुक एट इट, ठीक है। एक गार्नोड कंपनी क्वेश्चन है दैट वी कैन डिस्कस प्रॉब्ली टुमारो। आज जरा आ जाओ, डिविडेंड वैल्यूएशन पे बात करते हैं, डिविडेंड डिसीजन पे बात करते हैं, आ जाओ फास्ट, अभी ब्रेक तो लेने सकता है, राइट, 15-20 मिनट में ये डिस्कशन करके आपको छोड़ देता हूँ, करेक्ट। डिविडेंड क्या है, पहले टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी है, स्टेबल और कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड एवरी ईयर, या हो सकता है सेम अमाउंट, राइट, विथ ग्रोथ, यानी विथ ग्रोथ परसेंटेज सेम एवरी ईयर, ऐसा करके भी क्या कर सकते हैं, बोलो, कांस्टेंट और डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है। Then there can be constant payout ratio policy. Constant payout ratio, same percentage of earnings are paid as dividend every year, and variability of dividend depending on earning may not be an effective policy as dividend cash flow is unpredictable. वो वाला problem है. Because of that, if you are having any company which has a constant payout ratio policy, it may not be a very healthy practice, right? And no dividend is paid by the company, then generally followed in growth phase or young companies, cannot be a permanent policy. Once growth phase ends, dividend has to be paid. और लास्ट में रेसिडुअल पॉलिसी, वॉट एवर इज लेफ्ट यू पे आउट एज डिविडेंड, करेक्ट। So suitable for young and growing companies who are in the initial growth period, but there will be variable of payment of dividend leading to risk, and investor of company might not be very comfortable with this kind of dividend payment patterns. There are ratchet payment of dividends, ratchet payment below ratchet payment. In this what happens, basically even if you don't have earnings in some year, you pay dividend because you don't want the share price to fall, correct? Generally if dividend is not paid, share price falls, so you don't want that to happen, correct? So that is how you avoid it from happening, ठीक है क्या? फिर you have dividend consideration for or factors to be considered, theories of dividend, पहले theories of dividend ले लो। dividend irrelevance theory, it says that dividend is comparatively irrelevant for decision making, right? The share price increase or decrease will only be there, dividend does not have an impact on share prices, which is completely illogical, correct? They say dividend is irrelevant as they have no impact on share prices. You can manufacture dividend by selling part of shares. If you do projects which have positive NPV, correct, the share price will increase, right? Dividend is not required to be paid. Dividend relevance theory says that dividend has an impact on what? Tell me, share prices. If high dividend, good financial position. Low dividend means not a very good financial position. This is only called dividend signaling. Then investor prefer current dividend income rather than future uncertain CG. You never know share price कब fall कर जाएगा, correct? And general dividend are taxed at lower rate than CG, so investors prefer dividend over CG.
CEO of the company is of the view that dividend payments are high and company should avoid dividend payments. Explain to the company CEO what is the impact of payment on share price. So you should write irrelevance, relevance, efficient market hypothesis, no efficiency, weak efficiency, semi strong. So how dividend impacts on this वो भी आपको बताना पड़ेगा. Then factors to be considered, right? Mark it as a LDR question, has been asked before in exam, can be asked in the future. Legal position, what is the government restriction on percentage of payment of dividend, profitability and availability of cash flow, right? Then optimal gearing position, inflation, tax and control, correct? So inflation, due to high inflation, slowly what happened? Value of dividend will fall. So if inflation, profits might reduce, but constant dividend will remain same, leading to lower retention. So if you keep it same over the time inflation, because of inflation, the value of dividend will be very less. Optimal gearing position means what? Tell me. If you have very high gearing, correct, then there will be a fall in value of equity, and optimal gearing ratio will be what? Comparatively lower, correct? Optimal gearing ratio will be lower. So upon gearing, if the gearing is very high, correct, then there will be no money left to pay for the dividend. If the gearing is very low, right, then there will be a lot of money left for the dividend, correct or not? Profitability and available cash flow. If you don't have cash flow, you cannot pay dividend, right? If you don't have profitability, you cannot pay dividend. Tax and control means what? If tax is high, then low profit will remain for dividend, right? Control, if dividend is not paid, you can do higher investment in business, you will have more control in the business. Growth, generally fast growing companies pay no or low dividend, and generally mature companies have a settled dividend policy, correct? Have a look. Makes sense? Does not make sense? Makes sense. चलो आ जाओ. Consideration for MNCs. MNCs में क्या है? You have to decide one or two things, correct? Or one or two things extra will be there. All these things are there. There are restrictive covenants. Bank may restrict blocked remittances. At times when dividend is paid from one company to another company, from one country to another country, certain government withholding tax, blocking of remittances is there. You have to look at there also. And access to other source of finance, if there is any, you look at that, correct? फिर MNC circumvent वो transfer pricing and all that stuff. What is it? Charging royalty, management charge, patent fees जब लगाते हो, so at that time, right, it is nothing but you are plowing back profits, so whether it is allowed or not. Then interest on loan between holding and subsidiary. See, all this royalty fees, everything has to be what? Approved the transfer price from what? The ruling government, right? If government is okay with that, no tension, correct? Then dividend capacity, dividend received from foreign operations. हाँ, ये एक पार्ट है. अभी एक ये दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट. आई थिंक दिस वी कैन डू टुमारो. बट एक लामरी कंपनी देखो ना, लामरी एंड लिमनी, टू कंपनी, टू क्वेश्चंस. एक लिमनी कंपनी क्वेश्चन है, आ जाओ जरा. एक लिमनी कंपनी क्वेश्चन है. लिमनी, लिमनी था या लामरी था, आई डोंट रिमेम्बर, बोथ में से एक है. हाँ, ये रहा लामरी. लामरी कंपनी, लामरी नहीं, अपने को लिमनी करने का आज. लिमनी टाइप ऑफ डिविडेंड व्हाट? टेल मी. अरे इधर किया नहीं, आई थिंक. लिमनी बोल के एक क्वेश्चन है ना, मेरे पास इसका आंसर था क्या लिमनी का? आई हैव द आंसर, वेट. लिमनी, लिमनी, आ जाओ जरा. लिमनी कंपनी क्वेश्चन इज देयर विथ यू. अरे था ना, लिमनी कंपनी देखो जरा, विजिबल है क्या लिमनी कंपनी? यस. तो लिमनी कंपनी क्या बोलता है? यू हैव टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ थ्री क्या है कंपनीज गिवन, उसमें से यू हैव टू फाइंड
मेरे को ये बार बहुत लग रहा है दैट डिविडेंड कैपेसिटी क्वेश्चन आएगा। कल डिविडेंड कैपेसिटी के लिए रखते हैं और बिजनेस और क्या रखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए कल का दिन रखते हैं विथ छोटा सा थियोरी ऑफ व्हाट, फॉरेक्स, करेक्ट, फॉरेक्स नहीं, छोटा सा थियोरी ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आई थिंक एक ये वाला क्वेश्चन आज देखो, आइडेंटिफाई करने का व्हाट टाइप ऑफ, टेल मी, dividend policy is there and write 2 or 3 lines about whether that company should be taken over or not। ठीक है, ये एक बार आज लिमनी कंपनी क्वेश्चन देख लेते क्या? ठीक है, आई थिंक एक बार मार्क करा दूं क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? आ जाओ जरा, आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दूं क्या? लिखे ना मैंने कहीं तो? आ जाओ, इसी में नीचे कंटिन्यू करता हूं। एक कैरिन कंपनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसूट कंपनी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, परसूट कंपनी हो गया। फिर और क्या है भाई, देखने दो मेरे को। हम्म, परसूट, ओपाओ अच्छा है, चीके पे अच्छा है, ओपाओ कंपनी चीके पे, करेक्ट, चीके पे मैंने करवाया भी है, वेस्ट पार्ले तो करवा दिया, नेंटे भी अच्छा क्वेश्चन है, नेंटे, जोशुआ। सेक्शन ए के तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आपने करने चाहिए। सेक्शन बी में एक्विजिशन एंड मर्जर में अलग में कोडियक कंपनी हैज एफ सी एफ ई, फिर सिगरा कंपनी हेल्प्स यू फॉर व्हाट, परचेस कंसिडरेशन, फिर कैरिन तो बोल दिया आपको मैंने, एक ऑक्सविक और गार्नोड, गार्नोड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्सविक भी अच्छा क्वेश्चन है, और एक स्टेपल ग्रुप बोल के क्वेश्चन था ना, प्रोपेलिस, नहीं स्टेपल ग्रुप इसमें है, सॉरी, एक झूला कंपनी भी रिसेंटली ऐड हुआ है, झूला, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो। और हाँ, इसमें से लामरी, और एक लामरी है और एक आई थिंक चिटहर्स्ट है ना, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, लामरी एक इंपॉर्टेंट है और एक चिटहर्स्ट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप लामरी भी कर लिए तो चल जाएगा। चिटहर्ष करने का, चिटहर्ष कर लो, लामरी तो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लामरी वही से देख सकते हो। विद दिस आई थिंक आज का अपना टारगेट इज डन। आई होप आई कुड हेल्प यू, आज के लिए काफ़ी है। वी विल मीट नाउ टुमारो, टुमारो रिकंस्ट्रक्शन, डिविडेंड कैपेसिटी एंड फाइनेंसिंग। मेरे को लगता है फ्राइडे को ओनली विल बी डन, सैटरडे को विल कीप, वो जो मॉक पेपर आया था ना, प्री मॉक, उसको डिस्कस कर लेंगे 1-1.5 घंटे में, राइट, व्हाट इज टू बी डन। चलो देन गाइस, we'll wrap it up for today. We'll meet tomorrow 6 p.m. Till then, bye bye. Take care of your health. Bye. Bye. Good night. थैंक यू सर। Welcome. Bye.